اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں حیات کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد انسان کی روحانی حیات ہے، اس کی روحانی زندگی ہے، کیونکہ ایک ایسی زندگی جس میں انسان کا جسم تو بہت تندرست ہو مگر روح کا نہ اللہ سے تعلق ہو، نہ اس سے کوئی قرب ہو، نہ اس کی تڑپ ہو، نہ ہی اللہ اس روح کی مطلوب ہو، مقصود ہو، معبود ہو، محمود ہو، مدعو ہو، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ زندہ ہی نہیں مانتے۔ اللہ کا قرآن ان کو مردہ کہتا ہے، کیونکہ جس انسان کا دل اللہ کی یاد سے زندہ اور منور نہیں، اس انسان کے جسم کا بھی اس دنیا میں کوئی حال نہیں۔ ایک مقام پہ تو اللہ اس کو جانور سے نیچے درجے پر لے جاتے ہیں اور ایک جگہ اسے مردہ ہی کہتے ہیں۔ یہ دونوں آیات کے اندر انسان کو جو القاب ملے اللہ کی طرف سے، مردہ ہونے کے یا جانور سے بدتر ہونے کے، اور یہ کوئی عزت کے اور احترام کے الفاظ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سوچنے سمجھنے کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ انسان کا دل جو آنکھوں اور اس کے سننے اور دیکھنے سے جڑا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی یاد سے، اس کے قرآن سے، اس کی کتاب سے اور اس کے فرمان سے غافل ہو یا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، ایسا شخص جانور ہے، بل ہم اضل، مگر جانور بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ مگر انسان اگر اس درجے پر آ جائے تو ایک جگہ تو اسے اللہ جانور سے بدتر کہتے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اومن کان میتن فاحییناہ، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ دین ہی انسان کو حیات دیتا ہے، اس کی روحانیت کو، اس کی عقل کو، اس کی فطرت کو، اس کی سوچ کو، اس کے افکار کو، اس کے عقائد کو، اس کے انقیادات کو، اس کے ادراکات کو، اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو اصل انلائٹنمنٹ تو یہ دین دیتا ہے انسان کو۔ آ کے جب وہ حق و باطل، صحیح اور غلط کا میزان اور کرینہ سیٹ کرتا ہے، وہ یہ دین کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم مردہ تھے، ہم تمہیں اس سے زندہ کرتے ہیں، اور جو اس سے زندگی پسند نہیں کرتا زندہ رہنا تو ایسے شخص کو اللہ مردہ کہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مردہ زندگی سے جو بے جان ہو جاتی ہے، جس میں کوئی سکون، اطمینان اور راحت نہیں ہوتی، ہمیں اللہ کی دین کی طرف، اس وحی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس لیے تو اللہ نے اس وحی کو روح ہی کہہ دیا ایک جگہ پر، وہ روح جس سے انسان جب وہ ماں کے پیٹ میں آتی ہے تو بچہ زندہ کہلاتا ہے، جب وہ نکال لی جاتی ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے، جب وہ پھر ڈالی جائے گی تو انسان زندہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ روح ہی ہے جس سے انسان کی زندگی کا تعلق ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن اور حدیث کو، اپنے قرآن کا ایک نام روحی رکھ کے، روحی بتا کے اس کو آگے بیان کیا۔ اللہ نے اپنے قرآن کا ایک نام ہی روح بتایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف یہ روح بھیجی ہے جو ان مردہ دلوں میں جان ڈالے گی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ایمان، کتاب اور یہ قرائن اور یہ میزان اور یہ حق اور باطل کی باتیں لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے اسی روح کو ایک طریقے کا نور بھی بنا کے بھیجا ہے، تو نور سے آپ دیکھ سکیں گے اور حیات سے آپ چل سکیں گے۔ حیات و نور کے اس کمبینیشن کے بغیر انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے اور جانور سے بدتر ہے۔ تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، بڑے فلسفوں کے ساتھ بیٹھے گا اور بڑے کی بات سنے گا، بڑی بڑی باتیں سنے گا، تو بیٹا پھر بڑے کام کرے گا زندگی کے اندر۔ تو میرے بچوں کو بڑا سوچ بیٹا، اپنی اوقات سے بڑا سوچے آج، مگر کچھ اصولوں کے ساتھ۔ پہلا اصول جو میں نے اپلائی کیا اور آج تک جہاں تک پہنچا رب کے اس اصول کے اوپر ہے، یو ڈیڈ اٹ، تو نے برباد کیا اپنی زندگی کو۔ کامیابی کے سفر کا پہلا اصول، آئی ایم ریسپانسبل فار مائی میس ان لائف، میں نے برباد کیا۔ دشمن دوست نہیں بنے، میری غلطی، دوست سجن نہیں بنے، میری غلطی، میں نے خراب کیا۔ ساسیں بہوؤں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہے، بہو کہ میری غلطی، اور بہویں ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ساس کو یہ نہیں کہنا چاہیے پڑوسن نے کام خراب کیا، ساس کی غلطی۔ لوگ تیرے بارے میں حسن ظن نہیں رکھ رہے، میری غلطی۔ پانی رستہ نہیں بنا رہا، میری غلطی۔ منو سلوا آسمان سے نہیں اتر رہا، میری غلطی۔ آئی ایم ریسپانسبل فار مائی میس۔ میرا اخلاص اوپر سے بارش نہیں کرا سکا،
मेरा रवैया लोगों के कलेजे नहीं तड़पा सका, मेरी कंसिस्टेंसी जुस्तजू लोगों के जिगर नहीं हिला सकी, लोगों के इरादों को, उस इल्म को नीयत, नीयत को कसरत, कसरत को अज़म, अज़म को इरादा, इरादा को अमल में नहीं तब्दील कर सकी। मेरी अमल नतीजा नहीं ला सकी, नतीजे मुहासबे ना करा सकी, मुहासबे फिर इल्म नहीं बढ़ा सकी। मेरी गलती। ये छोड़ दें क्योंकि वो मसला था, ये मसला था, वो मसला था, लोग ठीक नहीं थे, घर वाले सही नहीं थे, ससुराल अच्छा नहीं था, क्लाइंट नहीं मिला, मार्केट ही गन्नों और पेड़ों की थी। दिस इज लूजर टॉक, ये शिकस्त याफ्ता बातें। बड़ा आदमी हमेशा कहता है मेरी गलती, मैंने ये तकरीर बर्बाद कर दी, मेरी गलती, मैं नहीं वो इन्फ्लुएंस छोड़ सका, मेरी गलती, मैं ये कलेजे तड़पा नहीं सका, ये मेरी गलती, मेरे लफ्जों में वो तासीर नहीं आ सकी, रब का ऊपर से वो इनाम नहीं आ सका, मेरी गलती, मैं नहीं कायल कर सका कौम को, मैं नहीं दर्द बेच सका प्लेटफॉर्म पे, मेरी गलती। इससे एटीट्यूड बनेगा आपका, जो मेरे दोस्त ने बुनियाद रखी जिसकी, अपने आप को दुरुस्त, सेल्फ चेक, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहसाबू, मैं ही होऊंगा गलत। तो आज से अपना मिजाज बनाएं, एक ही चीज को 18 तरीकों से सीखने का। दूसरा उसूल, अल्लाह ने 6 दिन में दुनिया बनाई, 6 days। सवाल, क्यों बनाई गई? कि हम कौन कहते हैं काम हो जाता है, अल्लाह ने 6 दिन में दुनिया क्यों बनाई? अल्लाह का अमल बगैर असबाब के, बगैर एसेंसेस और इबरतों के हो नहीं सकता। दर्जा बदर्जा जिंदगी बनाई अपनी। अल्लाह ने सबक दिया इंसान को कि मैं कौन में काम कर सकता था, तो मैंने तेरी दुनिया 6 दिन में बनाई है। ये 6 मिनट के इंकलाब जो चढ़े हुए ना लोगों को, कि मैं 6 मिनट में तब्दीली ले आऊं, मैं 6 घंटे में पूरी कौम का आबे का आबा सही, रॉन्ग। सदियां लगती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, अरे सदियों के बाद जाके चमन में दीदावार की पैदा होता है। ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं सदियां काम करके, ये 6 मिनटों में कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी दुश्मनियों से भरी पड़ी है, मुझे पता है मैंने किस दुश्मन को कब राम करना है। आई नो इट वेरी वेल, आई हैव, इट इज ऑल प्लान्ड इन माय हेड। किससे मैंने कब कहां किस तरह का रखना है साहब किताब। मोमिन हमेशा दर्जा बदर्जा चलता है, जंगें भी प्लान्ड दर्जा बदर्जा, दोस्तियां भी प्लान्ड, इश्क भी दर्जे बदर्जे होंगे। सारे महाजों पे इश्क एक साथ नहीं खोला जाता, तरीके के साथ करने हैं काम आपने। सलाम करें, न्यूट्रलाइज करें, अभी नहीं बनती, यहाँ दलील नहीं बनती, यहाँ मुनाजरा नहीं बनता, यहाँ उसके साथ बैठना नहीं बनता, यहाँ उसके साथ उठना नहीं बनता, यहाँ उसके साथ बिगाड़नी नहीं बनती। हमें पता है वो मुनासबतें कर रहा आगे से बैठ के, लेकिन नहीं बनती इसके साथ यहाँ पर ये करना। क्यों? दर्जा बदर्जा घुमा के लाएंगे उसके पास, वेट करेंगे, मौजों का भी वेट करेंगे। आप कामयाबियों के राजों में से बड़ा राज क्या है? स्टेशन करें अपनी जंगों को, अपनी तरक्कियों को। तीसरा बड़ा उसूल शरीयत, आसानी नहीं पुत्र, आसानी। टेढ़े रास्तों से खुदा भी नहीं मिलता, मंजिल भी नहीं मिलती, थक भी जाएगा आगे से। बड़ा उसूल है शरीयत का, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, आसानी लें। कुएं में उल्टा लटक के एहसान के दर्जे पे पहुंचने का कोई फॉर्मूला नहीं देखे गया कोई। अल्लाह आसानी से मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, मंजिलें भी आसानियों से मिलती है। सिराते मुस्तकीम सीधा है, सीधे पे मंजिल भी सीधी, दुश्मन भी दिखेगा, दोस्त भी दिखेगा, मुनाफिक भी दिखेगा। टेढ़ी पगडंडियों में जाने की क्या जरूरत है? जहां ज्यादा मसल एग्जर्ट होगा, जहां ज्यादा मसाइल खड़े होंगे, जहां ज्यादा पेचीदगियां, सीधा आसानी में। कहीं पर बोल के वक्ती प्रेशर लेके कह देना आसानी होती है, कहीं पे खामोशी आसानी है, कहीं पर किनारा कशी आसानी है, और कहीं पर जाके अफशु सलाम करके, अगरचे नफ्स पे बड़ा है, सलाम करके बाद ये मुख्तलिफ महल के अंदर आसानियां क्या है ये असाज़ा बताएंगे आप। ये जिंदगी बेवफाइयों का नाम है। ना इंसान ने अपने साथ वफा की, ना लोगों ने इंसान के साथ वफा की। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा, ये कड़वा सफर है जिंदगी का। इसमें सिर्फ तू होगा, सिर्फ तू होगा बेटा, ना इधर कुछ होगा ना इधर कुछ होगा, सिर्फ तू होगा। और जब कौमें और काफिले भी तेरे साथ जुड़ेंगे, तो ये किताबें पढ़ के लफाजियां नहीं कर रहा, वक्त की आग में जल के शेख आतिफ खड़ा है आपके सामने आज। मैं अपने तजर्बों से अपने बच्चों को, अपनी औलादों को ये कह के जा रहा हूं, बेटा जब कौमें आ जाएंगी तब भी तू अकेला ही होगा। लीडर की शान ये होती है वो मजमे में भी तन्हा होता है, ये तन्हाई उसकी जिंदगी का मिराज होती है, ये इसको विरसे में नसीब होती है। तू कभी भी आज से याद रखी, सच की कीमत तन्हाई है। और जब लोग भी तेरे साथ होंगे और तू लोगों की दिलों की एक धड़कन और एक एहसास बन चुका होगा, तब भी तन्हाई हो। आज तेरी तन्हाई है क्योंकि लोग तेरी आइडिया को उस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और कल तेरी एक तन्हाई होगी, लोगों के आगे तू अपनी कमजोरी का इजहार नहीं कर सकता।
लीडर की कीमत ही ये है कि ये सफर उसको नजरियाती लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, बातनी लिहाज से, रूहानी लिहाज से अकेला काटता है। इसके बरक्स एक गुलामी है जो लोग डिफाइन करेंगे तेरे लिए कि तू ये हो जा, जो माशरा तेरी लिमिट डिफाइन करेगा ये गुलामी है, जो घर वाले तेरी लिमिट और हुदूद और कुयूद डिफाइन करेंगे ये गुलामी है। When people wanted you to fit into the system, जब लोगों की मोहताजी होती कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे, लोग मुझे रिकग्नाइज कर रहे, मैंने मान लें कि मैं कोई चीज है, जब लोग मेरे जाहिर की इबादत के अंदर मशगूल हो जाए, सजदा देते हैं लोग मुझे, अगर इसी में रहना है और खुश है इसके ऊपर, अब बना लिया कुछ अपने आप को कॉस्मेटिक वर्जन के लिहाज से तो फाइन, लेकिन कुछ ब्रीड इस दुनिया में नहीं बनी बेटा, कुछ रगों के खून वो गुलामी नहीं कबूल कर सकते, क्योंकि मैन इज मेंट टू कॉन्कर हिमसेल्फ। इंसान तो बना है अपने आप को फतह करने के, और फिर इंसान तो बना है दुनिया को फतह करने के, अफलाक के ऊपर एक नाम बनने के, लोगों की चलते हुए जिंदगी के अंदर उन धड़कनों में एक एहसास बनने के लिए, उनकी ठंड में एक गरमाइश बनने के लिए, और उनके गर्म तरीन हालात के अंदर उनके कलेजे की ठंड बनने के लिए। दो नजरिए हैं जिंदगी गुजारने के बेटा, एक वो जो लोग चाहते थे तू बन जा, एक वो जो लोग चाहते थे कि इससे आगे ना जाए भाई, इस हद तक की डिफाइंड लिमिटेड फ्रीडम के तो हम कायल हैं, इससे आगे मत जाए, तेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बर्बाद हो जाएगी, तेरा देश छुट जाएगा उस सच के ऊपर, तेरे अपने पराये हो जाएंगे उस सफर के ऊपर। लोग जो सदियों से झूठ पिलाते आए अपने आप को, तेरे उस सच बोलने से बेटा वो नेज़े और छुरे तेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो भी काम मांगेंगे तुझसे आगे कि ये बात ना कर, ये ख्वाब मत देख, ये इर्तिका की बात मत कर, ये एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी की बात ना कर, सब कुछ है तेरे पास, हम हैं तेरे पास, माशरा है तेरे पास। और दूसरा नजरिया है कि मैं डिफाइन करूंगा, मैं, मेरी बर्बादी भी मैं, मेरा ज़र्फ भी मैं, मेरा मजाक भी मैं, मेरा लुत्फ भी मैं, मेरी राहत भी मैं, मेरी फरा भी मैं बनूंगा अपने लिए एक शोखी, और मैं ही बनूंगा अपना एक सवाल, मैं ही अपना उरूज हूं और मैं ही अपना सवाल हूं, मैं डिफाइन करूंगा कि मैं कौन। इस जिंदगी के एंड में हो सकता है तो वो ना बन सके जो सक्सेस की फैंटेसाइज वर्जन की डेफिनेशन है। जीत फिजिकल अटेनमेंट का नाम नहीं है, जीत मंजिल पे पहुंचने का नाम नहीं है, जीत अपने नजरिए को पहुंचाने का नाम। तो अगर तू ना भी पहुंच सका बेटा क्या हुआ, अगर तेरी सोच दुनिया में जिंदा रह गई तो फिर भी अमर हो गया, ऐसे हारना मानी इसके ऊपर अपनी कर। तो ये पहली चीज तूने याद रखनी है, आज जिस जगह पर भी बैठे हो, जिन डिग्रियों को अचीव कर रहे हो या अटेन कर रहे हो या परसू कर रहे हो, ये तन्हाइयों का सफर है बेटा, ये दर्द भरा सफर है, तकलीफें हैं, आग है, खंजर है, नेज़े होंगे। जिस दिन तूने सच बोल दिया अपने आप, लेकिन तू नहीं जानता तू कहां तक जा सकता है। तुझे इन गलियों को तलाक देनी होगी बेटा, तुझे इन महफिलों को खैर बात करना। वो गार जिसने मेरे नबी को 36 साल की उम्र में दुनिया से अलहदा किया, वो गार हिरा में तो तुझे भी जाना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे नहीं हो सकता। जीत हासिल करना बड़े अज़ाबों से गुजरने का नाम है, उस जीत को बरकरार रखना, उस फतह को बरकरार रखना, और मद्दे मुकाबलों की सफों के अंदर अपनी हैसियत से, अपनी जिस्मानी रूहानी हैसियतों से जलजले खड़े करना, ये बड़े मुश्किल काम है बेटा। इसके लिए अल्लाह भी चाहिए, बगैर अल्लाह के नहीं पहुंच सकता तू। इसके लिए जंगों में तुझे अपना नबी लाना पड़ेगा, तुझे अल्लाह लाना पड़ेगा जंगों के अंदर, तुझे सहाबा किराम, ताबईन और अपने असलाफ की 1200-1500 साल की तारीख लानी पड़ेगी, और तुझे अपना आप लाना पड़ेगा, और तुझे अपने दौरे हाजिर के लोग लाने पड़ेंगे, तुझे पूरी कायनात लानी पड़ेगी अपनी जिंदगी के अंदर एक कदम बढ़ाने के लिए। तो अगर लोग नहीं आए, काफिला बड़ा नहीं हुआ, लोग मुझसे सवाल करते हैं बच्चे, मैं इतना सा हूं और असबाब नहीं है। और बेटा असबाब को तेरी जरूरत है, तुझे असबाब की जरूरत नहीं है। असबाब तुझे बुलाएंगे एक टाइम पर, असबाब खुद बुलाएंगे तुझे। तू क्यों असबाब का मोहताज हो रहा है इस टाइम पर? क्यों नहीं कलेजे में वो रूहानियत उतारता कि अल्लाह 600 पर वाला आज भी उतारे तेरे लिए नीचे। ममन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, 4 दरवाजे बंद हो, 5वां दरवाजा खुले तेरे लिए। लिमिटेशंस में मुमकिनात पैदा हो तेरे लिए, ये तो तेरी रूह कायल करेगी। बच्चे मुझे कहते हैं हमसे मुनाजरा नहीं होता, हमसे मुनाकशा नहीं होता, हमसे डिबेट नहीं होती। सुन कुरान की आयत पुत्र, अल्लाह कहता है तू परहेजगारी अपना, तू गॉड कॉन्शियसनेस अपना, तू लिल्लाहियत अपना, तू तफक्कुर अपना, तज़क्कुर अपना, तदब्बुर अपना, मैं तुझे दलील दे दूंगा मुकाबला करने के लिए। हमारे यहाँ रविश है लोगों को तब्दील करने की। पहले खुद से तो जंग लड़ ले मेरे भाई, फिर दुनिया से जंग पे उतर जाएं। पहले अपने आप से जंग है, और ये नफ्स की गुलाटियां ये आखिरी लम्हे तक खत्म नहीं होंगी। तो इस सफर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने रखी हैं
तेरी तरबियत के लिए, कुछ चीजें अल्लाह ने रखी हैं तेरी नफी के लिए, कुछ चीजें अल्लाह तखलीक करेगा तेरे इसबात के लिए, कुछ चीजें अल्लाह तखलीक करेगा तेरे तहम्मुल और हौसले को बढ़ाने के लिए, कुछ चीजें अल्लाह करेगा तेरे सब्र को मजबूत और कवी करने के लिए, कुछ चीजें अल्लाह रद्दो बदल करेगा तुझे कुछ चीजें समझाने के लिए। तो अपनी इब्तिदा को सिर्फ अपनी औकात को याद रखने के लिए, तकब्बुर को खत्म करने के लिए, बुग़्ज़ और हसद और इनाद और कीने को खत्म करने के लिए अपने पिंड और अपने देहात और अपने गांव और अपनी बिरादरी और अपने कारनों जाके देखी, मगर अपनी इब्तिदा को अपनी हदबंदी करने के लिए ना रखी। अरे तू तो बना है दुनिया में चमकने के लिए, आप बने हैं चमकने के लिए भाईजान, क्यों हल्का ले रहे अपने आप को? जो अपनी इज्जत नहीं करता वो गैरों से अपनी इज्जत क्या मनवाएगा? तो बेटा अपनी जिंदगी पे तेरा कंट्रोल, मंजिलों के ऊपर वो रसाई, लोगों की वो ताईद, जिगर कलेजों का वो इल्हाक तेरे साथ तब होगा जब तू अपनी रूहानी लिहाज से भी अपने आप को ठीक करेगा, जिस्मानी फिटनेस का भी ख्याल रखेगा, तफक्कुर तदब्बुर को भी मजबूत रखेगा, उस्तादी शागिर्दियों को भी बाप गरम रखेगा, सियासत को भी समझे। तूने वो ज़र्फ अपनाना है, लोगों ने तेरे गोश्त और खून चूसे होंगे, काटे होंगे, तुझे जब अल्लाह वो क़यादत और वो वकार देगा, तूने ये काम नहीं करना बेटा। ये ज़र्फ, ये कलेजा, ये माफिया, ये वसत ही होती हैं जो लोगों का दिल जीतती हैं। तूने कमजोर तरीन हालात के अंदर भी, कमजोर तरीन हालात के अंदर भी म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी, और आला मकाम के ऊपर पहुंचने के बाद भी लोग सोते हुए भी रात को कहें तू मिसाल होनी चाहिए। लोगों कहते हैं मत जिंदगी वो जिसमें दुश्मन भी मानता हो यार कोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन भी मानते थे कि यार कोई हस्ती है। जिंदगी तुझे ऐसी गुजारनी है बेटा कि तेरे दुश्मनों के ईवानों के अंदर भी तेरी तारीफ के बाब गूंजते हो। ज़र्फ बड़ा रखना, कलेजा बड़ा रखना, माफी बड़ी रखना, कुसत बड़ी रखना, जब गिर जाए यही जुमला कहना, मैं घर से नहीं कमा के लाया था सब, तुझे इसी धरती जमीन और कायनात ने दिया था बेटा। लुट भी गया तो क्या हुआ, एंड में अपने साथ अगर जीना सीख गया तो शिकस्तों में गारों में भी इंसान उठा लेगा। दिस इज योर लाइफ और ये तेरी सेल्फ एस्टीम है, दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर जर्नी, यू विल मार्क द डेफिनेशन ऑफ योर सक्सेस। इसका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो तुझे सबसे ज्यादा कमिटेड होना है अपने आप के साथ कि मैं क्यों इजी ले लूं, मैं अपने हुस्न पर क्यों नहीं काम करूं, मैं क्यों नहीं अपने औसाफ पर काम करूं। फैसला आपका है। बाकी मैं ये भी सिखाता हूं, कोई मसला नहीं अगर बर्बाद भी हो गया है, जो बर्बाद भी होगा वो आबाद कैसे करेगा भाई। अल्लाह की कायनात में ये सुन्नत नहीं है कि तबाह हुई बस्तियों को आबाद नहीं करता, ये वो कर सकता है, इट्स फाइन। अगर तू बर्बाद कर चुका है खुद या किसी ने कर दिया है, ये रिवर्सिबल है। इंसान रिवर्सिबल है। इंसान उस ज़ौक़ से उस कुव्वत में आ सकता है, उस कायरी से उस शुजात में आ सकता है, उस किल्लत से उस कसरत में आ सकता है, वो तकलील से उस तकबीर में आ सकता है। ये अल्लाह ने सुन्नत रखी है, फितरत रखी है, इंसान रिवर्स कर सकता है। कुल्लू बनी आदम खता, एवरी मैन एरर्स, हर इंसान गलतियां करता है, खुद या हो जाती हैं बाय प्रेशर्स एंड फोर्सेस, फाइन। अल्लाह भी कहता है गलतियां होती हैं, हम जानते हैं गुनाह हो जाते हैं इंसान से। He gets off the standards, he gets off the grid। मगर एटीट्यूड एक लीडर का जो होता है ना, वो है वो खैरुल खत्ता तबाबून, कि वो उसको ठीक कैसे करता है जो उसने खराब किया है। सो व्हाट मैटर्स इज कि तू ठीक कैसे करेगा इसको, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। नफरत सही जगह पर, सही वजह पर, सही कता पर, सही जबान पर, सही मकान पर हो तो नफरत भी इबादत है, अगर सही महल में की जाए। और मोहब्बत जिसको आजकल की इंस्पिरेशनल टर्म में पैशन कहते हैं, बेटा जब तेरे हाथ पैर कट के लोग तुझे उन खाइयों में फेंक के आएंगे, वो तेरी इश्क और मोहब्बत ही होगी जो तुझे उठाएगी उस टाइम पर। मोहब्बत इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन। ये इश्क ही था जो जला देता है इंसान को उस राह के। वहां तक पहुंचने के लिए, वो रियाजत को कमाल तक पहुंचाने के लिए, उस हुस्न को उस जमाल तक पहुंचाने के लिए, आज अगर तू ये समझ सकता है कि ये दिस इज नॉट अ 1 मिनट जॉब, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्चुअलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड। बहुत मेहनत करनी है तुझे अपने आप को पहले लर्निंग टू अनलर्न, थिंकिंग टू अनथिंक करने के लिए। इसी में मर जाएगा तू, इसी में तेरे जनाजे निकल जाएंगे, तेरे नजरियात और जज्बात। जब तू सर करेगा तो तू कहीं होगा, वो कहीं होंगे। लंबी गेम खेली, तेरे दुश्मनों के ऐवानों में तुझसे जंग लेते हुए ये नैरेटिव जाना चाहिए एक पाकिस्तानी बच्चे को कि अगर इससे लड़ाई लेंगे, लंबी गेम में मारेगा, लंबी गेम का घोड़ा है, एक दिन में एकदम फैसले करके जज्बाती कौम नहीं बनाऊंगा। यू हैव टू लर्न टू फाइट लॉन्ग बैटल्स। यू नीड टू नो कि सदियां लगेंगी तुझे वहां तक पहुंचने के लिए।
کیونکہ تو صدیاں کٹ کے جب اپنے آپ کو قبول کر کے آیا ہوگا، وہ قومیں کہ قومیں تیرے سینے میں ضم ہو جائیں گی، تو گھبرا کیسے سکتا ہے لوگوں سے؟ تو کیسے گھبرا سکتا ہے لوگوں سے؟ میں اپنی قوم کے بچوں کو اس سے بڑا درس نہیں دے سکتا، بیٹا کیپ یور فرینڈز کلوز اینڈ کیپ یور اینیمیز کلوز. دشمن بغل میں رکھتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں اس سے. لیکن اگر تیرا نفس چھوٹا ہے، تیرے نفس کے جذباتیات 2 روپے کے ہو چکے ہیں، تیرا عقیدہ اور نظریہ سیکنڈوں میں شٹر اپارٹ ہو جاتا ہے، تو بیٹا تجھے الفاظ نہیں، نظریں مار دیں گی لوگوں کی بیٹھے. اور قیامت کے دن جس دن انسان ہولناکیوں میں ہوگا، تکلیفوں، پریشانیوں اور مصائب میں گھرا ہوگا، ان لمحات میں جب شیطان کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، اسی دوران اللہ تعالی نے اس کا ایک مکالمہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے اندر نقل کیا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا اس دن جس دن فیصلے سنا دیے جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ جو اللہ کے تم سے وعدے تھے، جو اللہ کے تم سے پرومسز تھے کہ وہ تمہیں جنت دے گا، وہ تمہیں عیش و عشرت کی زندگی دے گا، وہ مسرت اور راحت سے بھری، وہ باغات سے بھری، وہ سکون دے گا جس کے تم متلاشی تھے دنیا میں عمل کر کے، بے شک کہ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا تھا. وَوَعَدتُّكُمْ فَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا ہمیشہ رہے گی، ابدی ہے، اسی میں جی لو، جو کرنا ہے اسی میں کر لو، عیاشی کر لو، وقت کو ضائع کر دو، اپنی زندگی کو شرک میں مبتلا کر کے گانے بجانے، ساز باجے اور اپنے جسم، زبان، آنکھ اور اپنے پیٹ سے غیبت، حرام اور کبائر کا ایک لمبا سلسلہ جس کی میں دعوت دیتا تھا، آج میں اپنے وعدوں کی مخالفت کرتا ہوں. میں دنیا کے اندر اور اس آخرت میں تمہیں فلاح اور کامیابی نہیں دے سکا اور پہلے بھی نہیں دے سکتا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن آج تمہیں ایک بات ضرور بتا دوں کہ میں تمہارے اوپر غالب نہیں تھا. الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا، ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے گیا تھا میں تمہیں شراب خانوں میں، ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے گیا تھا میں تمہیں ناچنے گانے کے لیے، ہاتھ پکڑ کے تم سے جھوٹ، چوری، دھوکہ، غیبت نہیں کروائی تھی. فاستجبتم لی، تم نے تو مجھے جواب دے دیا. فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو آج. ولوموا انفسکم، مگر اپنے نفسوں کو، اپنے اندر کی نفوس کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بلکہ میں تو بے شک انکار کرتا ہوں وہ شرک جو تم کیا کرتے تھے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک کہ ظالموں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. ہمارے لیے اس میں ایک بہت گہرا، بہت دقیق، بہت فہیم میسج ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم شیطان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنی گمراہی کے لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک کہ شیطان کے مکر فریب، اس کی وسپرنگز اور اس کے وسواس اور اس کے وساوس، یہ سب بہت کمزور ہیں، یہ انسان پہ غالب نہیں ہو سکتے. یہ تو ٹیمپٹیشن ہے، یہ تو وہ پکارتا ہے شہوات کے ذریعے، لیکن اگر اللہ کی رسی کو انسان مضبوطی سے تھام لے اور اگر اللہ کے میسج کو، اس کے احکامات کو اور اس کے دیے ہوئے وعد اور وعید کو، اس کی دھمکیوں کو اور اس کی بشارتوں کو اگر انسان اپنی روح میں اتار لے، انسان زندگی کے اس سخت امتحان سے فلاح، کامیابی اور اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائے گا. آج سے ہزاروں سال قبل جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، سب نے اللہ کے اس حکم کی پیروی کی سوائے ایک سرکش جن کے جس کا نام ابلیس تھا، اور اس نے تکبر کا دعویٰ کیا اور کہا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں. اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے
اور اس کو مٹی سے، اور مٹی حقیر ہے، اور ساتھ میں ہی اس نے ایک مہلت بھی مانگی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، ایک جگہ پر تو اس نے کہا قال اریتک ھذا الذی کرمت علی، سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ دیکھ اللہ اس آدم کو جس کو تو نے مجھ پر عزت دے دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، کیا کروں گا میں؟ لأحتنکن ذریتہ، میں برباد کر دوں گا اس کی اولاد کو۔ اور سورہ اعراف میں کہتا ہے فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا اللہ، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں اس کے سیدھے رستوں میں بیٹھ کے اس کو ویسے ہی گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس کے بائیں سے آؤں گا اور اس کے دائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور یہ ثابت کر دوں گا کہ جو عزت تو نے اس کو دی یہ وہ عزت ڈیزرو نہ کرتا تھا، یہ نہ تیرا شکر گزار بنے گا، نہ تیرا نمازی بنے گا، نہ پرہیزگار بنے گا، نہ روزے رکھنے والا بنے گا، نہ تقوی والا بنے گا، نہ خشیت اور خوف رکھنے والا بنے گا، نہ تجھے تلاش کرنے والا بنے گا، نہ تیرے معاملات پر صبر کرنے والا بنے گا، نہ تیرے لیے رونے والا بنے گا، نہ تجھ سے امید رکھنے والا بنے گا۔ یہ دنیا کی عبادت کرے گا، یہ شہرت کی عبادت کرے گا، یہ مال کی عبادت کرے گا، یہ لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے گا، یہ میری بھی عبادت کرے گا، یہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جائے گا، یہ دنیا کو ہی اپنا اللہ بنا لے گا، اپنا الہ بنا لے گا، میں یہ ثابت کر دوں گا اللہ۔ اس چیلنج کے بعد اللہ نے اس کو جواب دیا، اور بہت زبردست جواب دیا۔ اللہ نے کہا جو تیرے پیچھے لگ گئے انہیں میں جہنم میں ڈالوں گا ہی ڈالوں گا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم، جنہوں نے تیری پیروی کر لی انہیں جہنم ہی دوں گا جزا کی شکل میں۔ آگے کچھ آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں بے شک کہ میرے بندے، میرے خاص بندے، لیس لک علیہم سلطان، تو ان پر کبھی غالب نہیں ہو سکے گا، تو ان پر کبھی قابو نہ پا سکے گا، ان کا دل مجھ سے جڑا ہوگا، وہ اندیکھے اللہ کو ہر وقت تلاش بھی کریں گے، اللہ ان کا معبود بھی ہوگا، مقصود بھی ہوگا، مطلوب بھی ہوگا، اللہ ان کی زندگی کی ابتدا بھی ہوگا اور انتہا بھی ہوگا، آخرت پر ان کی نظر ہوگی، قبر کے لیے وہ تیاری کر رہے ہوں گے، ان کی زندگی کا قبلہ اور ان کی زندگی کے مقصد میں تو ان کے پیر کبھی اکھاڑ نہیں سکے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے تجھے۔ صدیاں گزر گئیں اور وقت چلتا رہا، اور آج ہماری باری ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم رحمان اور اللہ کے چیلنج کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے دیے ہوئے مقصد پر گامزن ہیں اور اللہ کی للکار کے اوپر چل رہے ہیں نہیں چل رہے، یا کیا ہم شیطان کے سہولت کار ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی بات کا مان رکھ رہے ہیں جو اس نے ہمارے رب تعالیٰ کے سامنے وہ تکبر کیا اور چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور رحمان کی دی ہوئی زندگی کے اوپر اس کے نازل کردہ کتاب کے اندر دیے ہوئے مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا، گہرا نقطہ ہے، غور سے سنی۔ جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا، جب ایک انسان میں ایک سکل ڈیولپ نہیں ہوا، جب ایک انسان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ول نہیں آتا، when a man doesn't know how to do a thing، تو اللہ اسے وہاں فیل کرے گا ہی کرے گا تاکہ اس کا اس فیلڈ میں سکل اچھا ہو جائے۔ تو فیلئر کو اتنا یہ ذلیل قسم کا کانسیپٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ ہار گیا، ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تجھے ایک چیز آتی نہیں ہے اس لیے تجھے وہاں سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے، خلاص۔ فیلئر از نتھنگ، جسٹ ٹو ٹرین یو کہ تو آگے بڑے پٹھے کے ساتھ مقابلے میں گر نہ جائے، اس لیے انسان فیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے فیلئر سے یہ سمجھ لیا کہ میں برباد ہو گیا، میری ذات عدم ہو گئی، میری حیثیت ختم ہو گئی، میرا وجود بالکل زیرو میں چلا گیا ہے، تو بیٹا یہ سیلف ڈاؤٹ ہے۔ ہار بری چیز نہیں ہے اور جیت بھی بری چیز ہے، دونوں کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ برا ہوتا ہے۔ اگر ہار تجھے شک میں ڈال دے اور جیت تجھے تکبر میں ڈال دے، اگر ہار تجھے بنی اسرائیل بنا دے اور جیت تجھے فرعون بنا دے، اگر ہار تجھے شکی بنا دے اور جیت تجھے فضول کا اوور کانفیڈنٹ کر دے، تو یہ دونوں وہ بال ہیں بیٹا۔ It is the attitude behind events that matter۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
जब तू जिंदगी के समंदरों से गुजरेगा, जब तू एक्सपेरिमेंटेशनों से गुजरेगा, जब तू तजर्बात से गुजरेगा, जब तू मुशाहिदात से गुजरेगा, जब तू वक्त की ऊंच नीच से गुजरेगा, जब तू लाइफ के हाइज एंड लोज से गुजरेगा, जब तू नए नए रिश्तों से गुजरेगा, जब तू नए नए फैसलों से गुजरेगा, जब तू नए नए म्यारों से गुजरेगा, जब तू नए नए मुल्कों से गुजरेगा, जब तू नए नए पासपोर्ट से गुजरेगा, तो तेरे सीने को डेंट लगेंगे, तेरा अंदर का आप हिलेगा, उसमें खौफ भी हिलेगा, डर भी हिलेगा, उम्मीद भी हिलेगी, मोहब्बत भी हिल जाएगी। अल्लाह क्या कहता है? न्यूट्रलाइज कर उसको, ब्रिंग इट बैक टू द बैलेंस। कैसे? कि मेरे ऊपर भी एक ताकत है, लोगों से बड़ी भी एक ताकत है, मेरी सच्चाई सच को अट्रैक्ट करेगी, मेरी इंसानियत इंसानों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी बहादुरी बहादुरों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी कंफ्यूजन्स मेरे साथ कंफ्यूजन्स को ही अट्रैक्ट करेगी, मेरा डर डरपोकों को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ अला दीन खलीलिही, जैसा इंसान के बराबर वाला होगा वैसे ही उसकी नफ्सियात होंगी। शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर बनेगा तू इंशाल्लाह, गीदड़ों के साथ बैठेगा तो भगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा। फैसला तेरा है, फैसला तेरा है कि तू उन बलाओं को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू अपने आप को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू कह दे उसको फाइन, अगर इस स्टेशन पर ही मौत लिखी है तो मैं ऑनरेबली एम्ब्रेस करता हूं, निकल गया तो जंग फिर लंबी। और ये कब तक चलता रहेगा? लोग मुझसे पूछते हैं ये कब तक चलता रहेगा, ये रिस्क टेकिंग कब तक चलती रहेगी, ये कब तक जिंदगी में रिस्क रिस्क, जब पता ही नहीं है क्या होना है, जब पता ही नहीं है कहां से आनी है, जब पता ही नहीं है हिट कहां से लगेगी, जब पता ही नहीं है दुश्मन कहां से आएगा, जब पता ही नहीं है तनकीद कहां से आएगी, जब पता ही नहीं है कि कहां से सियासतें होंगी तेरे खिलाफ, जब पता ही नहीं है कि प्लानिंग कैसे कर रहे होंगे लोग तेरे खिलाफ, तो कब तक करना है उस्ताद जी? रियाज शेख आतिफ कब तक चलता रहे? बेटा ये मौत तक करना है तूने, हत्ता याती के यकीन इस हद तक कि तू दुनिया से चला जाए, क्योंकि तू लिमिट नहीं कर सकता अपनी जिंदगी को, जहां तू रुकेगा फिर तू यही था बेटा। अगर तू 50,000 रुपए पे अपनी लिमिट को करता है, अपनी लाइफ को, फैसला तेरा है। अगर तू 50 लाख तक की रियासत लेके जाना चाहता है एक महीने में, वो भी फैसला तेरा है। अगर तूने पूरा सूबा खाना है, वो भी फैसला तेरा है। और अगर तूने इसी गांव में दफन होना है या इसी कस्बे शहर में दफन होना है, फैसला तेरा होगा बेटा। लेकिन जितने लंबे और बड़े फैसले होंगे, गेम भी उतनी बड़ी हो जाएगी, फिर दुश्मन भी उतना बड़ा, दोस्त भी उतने बड़े, सियासतें भी उतनी गर्म। तो घबराना नहीं है बेटा। समंदर में साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना बहुत आसान है, मगर असल इंसान वो है बेटा जो लहरों की मुखालफतों में कदम उठाता है अंदर। He goes into those storms। वो कहता है ना, कहने वाला कहता है कि शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा, शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा कि तूफान से डर के रहना, ऐसा ना हो कि तू गिर जाए। तो ख्वाब देखने वाले ने जवाब दिया, ओए मैं ही वो तूफान हूं जिससे डरना चाहिए। आई एम द स्टॉर्म। तूफान बन बच्चे, खुद एक तूफान बन कि सारे तूफान तेरे अंदर आके गर्क हो जाएं। इतना बड़ा करना है तूने अपने आप को। तो जैसे ये जिंदगी के सिलसिलों में कदम बढ़ेंगे, जैसे ये जिंदगी के अंदर मामले बढ़ेंगे और तू फैसला करेगा उस कुएं से, उस गड्ढे से निकलने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को अफसानों में नहीं रखना चाहता कि जंगें नहीं होनी, सियासतें नहीं होनी, लड़ाइयां नहीं होनी, पॉलिटिक्स नहीं होनी। लेकिन आज ये भी मैं तुझे गारंटी से कहता हूं, 22 साल आगे खड़ा हूं मैं तुम लोगों से। मजा भी बहुत है, बड़ा एडवेंचर है, बड़ा शुगल है इसके अंदर। बहुत मजा आएगा तुझे जब एक टाइम पर उनकी बातों से तू हिलता था, और एक वक्त आएगा तेरी मुस्कुराहट से जलजले पड़ जाएंगे सिर्फ अगलों की सफों के अंदर। एक वक्त आएगा जब तेरी स्माइल जो होगी ना, उसके ऊपर तबसरे लिखे जा रहे होंगे। तेरे दुश्मनों में मौजू भी तू, वजह भी तू, कता भी तू, शराब भी तू, और उनकी जिंदगी का मिजाज भी तू। अपने दुश्मनों को एक मिजाज बख्श के जा,
दुश्मनों को भी वो दुश्मनी बख्श के जा कि वो भी अपने किलों में तेरी तारीफ करते होगा किसी पट्टे से जंग हुई है हमारी। बेटा जिंदगी में कायर की मौत मरनी है तो बेहतर अभी मर जा, लेकिन गुलामाना जिंदगी, अ लाइफ ऑफ अ स्लेव। मैं ये पूछता हूं तुम लोगों से, मेरे बच्चे, मेरे कौम, मेरा खून बैठा है, मेरे कौम का मुस्तकबिल बैठा है, कैसे मुंह देगा अपने आप को कि तू जानता था कि तू मैथमेटिशियन है, तू जानता था कि तू साइंटिस्ट है, तू जानती थी कि तू मार्केटिंग की अच्छी है बेटा, तू जानता था कि तू बना सकता था इस चीज को, तू जानता था कि 2000 करोड़ की सल्तनत खड़ी है आगे तेरे, कैसे अपने आप को जवाब क्या देगा? फलसफा बंद और तू ये छोटी छोटी भेड़ बकरियों से डर गया है, तू छोटी छोटी ये 2 रुपए के मसलों पे रुक गया है। सितारों से आगे जहां तो और भी थे बच्चे, अभी इश्क के मैदान और भी थे, और तूने यहीं अपनी रूहानी खुदकुशी कर ली। क्यों डरता है? अपनी शिकस्त को भी अपना जोश बना, अपनी शिकस्त को अपनी सरकशी बना, अपनी हार को अपना नशा बना, अपनी लज्जत बना। जिन कौमों में हारने का जज्बा होता है, दुश्मन तुझसे क्या छीन के ले जाएगा बच्चे, जब तू पहले ही अपने माइंड में अपनी हार कबूल कर और अपनी शिकस्त खुद डिफाइन कर। तेरा दुश्मन, ये माशरा, ये सोसाइटी तेरी हार डिफाइन, तू है तेरी हार और तू है तेरी जीत। इसलिए मैं अपने कौम के बच्चों को सबसे पहली तलकीन ये करूंगा, अपनी हार जीत अपने मुंह पे कभी ना लाई पुत्र, वरना लोग जान जाएंगे कि ये मरता कहां से। अपनी हार भी अपने अंदर रख, अपनी जीत भी अपने कलेजे के अंदर रख। एंड नेवर लेट योर एनिमीज हैव दैट ब्यूटीफुल स्लीप। अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को वो मीठी नींद कभी ना दें, ये जान के भी कि तू हार चुका है। चलाने दे, तेरी हार पर भी सोचने दे, तेरी जीत पर भी सोचने दे। आजाद बन जा अगलों के लिए, इतना छुपा ले अपने आप को। एंड मगर लोग मिले, लोग घबरा गए बच्चे, लोग मिले, लोगों ने झूठ पिया अपने अंदर, लोग मिले, लोगों ने दुनियावी लिहाज से डिफाइन किया अपने आप। और मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहता हूं, क्यों डिफाइन करता है अपने आप को कि आई एम अ मैथमेटिशियन एंड आई एम एन इंजीनियर एंड आई एम अ डॉक्टर। अ मैन इज मेड टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। क्यों रोकता है अपने आप को? तो डर बाहर है, बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तो सबसे पहले अपने आप से मिल ले, half of your fear is gone। जब अपने आप को पहचान लेगा और मान लेगा और सुन लेगा और जान लेगा, डर खत्म। उन वादियों में हार जा, आज हार जा, मैदानों में हार नहीं हारी बेटा, अपने मन की वादी। जब तू अपनी हार भी कबूल कर चुका है और जीत भी कबूल कर चुका है, लोग तुझे क्या हराएंगे आगे से, हालात तुझे क्या हराएंगे। तो 50% ऑफ योर फियर मैनेजमेंट इज यू एंड 100% ऑफ फियर मैनेजमेंट इज हिम। जब अल्लाह कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जमीन के 4 दरवाजे बंद हो, 5वां अल्लाह है पुत्र, अल्लाह है 5वां। अल्लाह कहता है तू मेरे साथ दिल लगी लगा, तू लोगों से दिल लगी लगा रहा है, तू मेरे साथ दिल लगी लगा। मैं मखरज अरबी में कहते हैं, मैं एग्जिट डोर निकालूंगा बलाओं के बीच में से। हमारे बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि जब उनसे कोई पूछे, ये मेरा जुमला रकम करके जा रहा हूं आपकी सरजमीन पर, लोग आपसे पूछें आप नाश्ते में क्या खाते हैं, हमारे कौम के बच्चों का जवाब होना चाहिए बलाएं, आई ईट मॉन्स्टर्स इन माई ब्रेकफास्ट। और जब लोग पूछे आप रात को क्या खाते हैं, तो आप बोले स्पाइसी बलाएं, आई ईट स्पाइसी मॉन्स्टर्स। हमारे बच्चे बलाएं खाने वाले होने चाहिए कि वो कह सकें तूफानों को, उन तुगयानियों को, उन मिजाजों को, उन फिरौनों को, उन बेदर्द बेरहम सियासतों को कि मैं तेरे सीने में से हाथ डाल के तेरा कलेजा निकाल के कच्चा खा जाऊंगा। यह जिगर होना चाहिए इंसान का, तभी तो जाके वो फेस कर सकता है, वरना खा जाएगी ये दुनिया तुझे पुत्र। बड़ा सख्त मुकाबला है इंसान का, गुलाम के लिए नहीं, गाफिल के लिए नहीं, जाहिल के लिए नहीं,
یہ دنیا آسان اور ایک میٹھا گھونٹ ہے جاہل کے لیے، یہ دنیا آسان اور میٹھا گھونٹ ہے غافل کے لیے، یہ دنیا آسان اور میٹھا گھونٹ ہے ڈرپوک اور بزدل کے لیے، یہ دنیا ایک آسان اور میٹھا گھونٹ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا، تو وہیں رہ پھر پتر، بہتر ہے میدانوں میں مرنے سے اچھا ہے کہ تو وہیں مر جا۔ لیکن کیسے جیے گا مجھے بتا، کیسے جیے گا اس زندگی، کیسے دیکھ، I wanna know کیسے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں، لمحے تو وہ ہوتے ہیں بیٹا جب انسان تنہائیوں میں ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان گمنام ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان اکیلا ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب ادھورا ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب دنیا اسے ان جگہوں پہ ترک کر کے آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی روح کی چیخیں نکل جائیں وہاں پر کہ میں واقعی نکلنا چاہتا ہوں اس سے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان ان تیز ہواؤں میں دیے جلاتا ہے، ان چٹانوں سے مقابلہ کرتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے جو سوچ نہیں سکتا کوئی، وہ سلطنت بنانے کی سوچتا ہے جو کسی کا مائنڈ پرسیو نہیں کر سکتا، کسی کا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا اس چیز کی۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کو اندر باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تو چھوڑ دے اس چیز کو، تو نہیں بنا اس کام کے لیے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان تاریخ کے دریاؤں کا رخ موڑنے جاتا ہے آگے سے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے اور انسان کا تفکر ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے جس سے انسان بات کر سکتا ہے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ ایسا غصہ ہوتا ہے کہ انسان جل جائے، پھٹ جائے اس ٹائم پر، مگر وہ اپنے آپ وہ ایسا سکوت اختیار کرتا ہے کہ آپ سوچ زمانے بھی رشک کرتے ہیں اس کے اوپر۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے مگر تمسک کرتا ہے اس چیز کو کہ نہیں میں اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کنٹین کرتا ہے اپنے اندر کی اس آگ کو، اس بھرم کو، اس حسد کو، اس حقد کو، اس غصے کو کہ میں ابھی نہیں نکال سکتا۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب زمانے ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قید ہوتی ہے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب لوگ تیرے سامنے تجھے بھول جائیں گے، تجھے پھر بھی چلنا ہے آگے۔ وہ لمحات ہوتے ہیں انسان کے، لیکن لمحات تو وہ ہوتے ہیں جب تنہائیوں میں انسان کھڑا کرتا ہے اپنے آپ کو، جب ان اکیلی راتوں کے اندر جب اس کے سینے کا کلیجہ اس وقت پھٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، اور کوئی سننے کے لیے آواز نہیں ہوتی اس کے ارد گرد، اور کوئی جاننے کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کتنی کرتا ہے، اور لوگ اور دنیا کھڑے ہوں گے تیری عزت خراب کرنے کے لیے، اور دنیا کھڑی ہوگی تنقید کا بازار کرنے کے لیے، اور تماشبین ہوں گے دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کب تو گرے گا، کب تیری ایک مثال بنائیں، اور کب ہر خواب دیکھنے والے کا وہیں گلا گھونٹ دیں۔ یہ لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، مگر یہ سب کھڑا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، جگر چاہیے، دل چاہیے، وہ قلب چاہیے جو لے سکے یہ ساری ہٹس آگے سے۔ تو اگر ابھی سے اس دور سے شروعات نہیں کرنی، ابھی سے اپنے آپ کو وسیع نہیں کرنا، ابھی سے سوچنا نہیں، تیار نہیں کر رہا ان جنگوں کے لیے جو آگے آنی ہے، بیٹا کیسے سروائیو کرو گے؟ مسلمان جس کو ایک بیماری کبھی نہیں ہو سکتی تھی، سب سے زیادہ گولی بک رہی ہے زینکس کی پاکستان میں، ڈپریشن۔ مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے تو پہاڑ زمین ایک کر دیے، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا، تم کیسے گھبرا گئے آگے سے؟ تمہیں کیوں مایوسی ہوگی؟ ڈاؤٹ کہاں سے آگے؟ جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ ہم کیسے شک میں آگے؟ اگرچہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے، اگرچہ مد مقابل بہت آگے نکل گیا ہے، تو زندگی انہی چیزوں کا نام ہے بیٹا۔ لوگ تجھ سے آگے چلے جائیں گے، لوگ تجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ تیرے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تیرے پاس اسباب نہیں ہوں گے، تیرے پاس وہ شہرت نہیں ہوگی، وہ تلقی بالقبول نہیں ہوگی، لوگ تجھے اب مانتے نہیں ہوں گے، تیرا سکہ بکتا نہیں ہوگا، تو لوگوں کی دھڑکن نہیں ہوگا، تو کسی کا احساس نہیں ہوگا اور کسی کی فکر نہیں ہوگا۔ ان لمحات میں اور ان وادیوں میں لیڈر پیدا ہوتا ہے، ان لمحات میں اور ان گھاٹیوں کے اندر ایک امام اور قیادت جنم لیتی ہے، اور انہی اوقات کے اندر ایک روح اپنی ایکسیلنس کو اٹیچ کرنے کے لیے ایک عہد اٹھاتی ہے، ایک عزم بناتی ہے، ایک قصد بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اس ارادے کو ایک عمل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے سارے ریفرنسز کو مائنس کر کے ایک نئی تعریف دیتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن اگر ایک انسان سمجھتا ہے، ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ نہیں، زندگی کو میں جیسے چاہوں، جس غلط طریقے سے چاہوں، اپنی ویلیوز کو، اپنے اصول کو، اپنے ضوابط کو، اپنے قواعد کو، اپنے اصولوں کو، ان کو میں بلی چڑھا کے، ان کی چیٹنگیں کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کو نیچے لگا کے، زگ زیگنگ کر کے اگر میں نکل جاؤں گا تو تکے، محض اتفاق، فلوکس اور کوئنسیڈنسز، اور اس طرح کے 2 نمبر رستے بیٹا کچھ عرصہ تو چل سکتے ہیں۔ دنیا کے اس سٹیج کے اوپر جب مقابلہ ہوگا نا کسی صحیح والے پٹھے کے ساتھ، آپ نہیں لڑ سکیں گے، آپ نہیں اس سے جیت سکیں گے۔ اس لیے یہ وقت ہوتا ہے، یہ لمحات ہوتے ہیں، یہ لحظات ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔
लेकिन एंड में मैं फिर भी यही कहूंगा, स्किल मैनेजमेंट, हुनर के ऊपर इंसान जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इंसान सोने को कुंदन, कतरे को समंदर, जर्रे को एक चट्टान और एक छोटी सी आतिश को एक आतिश फिशा तब बनाता है जब उसके अंदर वो कलेजा हो, वो जिगर हो, परसिस्टेंट रहने का, पेशेंट रहने का, साबिर रहने का, कंसिस्टेंट रहने का, कांस्टेंट रहने का, मुस्तकिल मिजाज रहने का, इस्तकलाल रहने का, कि I'll keep falling down and I'll keep moving forward. I'll keep falling down and I'll keep moving forward. He strikes his way in those storms that are meant to nail him down. तो ये सबर के बगैर ये सफर नहीं हो सकता। ये सबर के बगैर, ये तहम्मुल के बगैर, इन इत्मीनान और इनके बगैर वो सुकून नहीं मिल सकता, वरना स्ट्रेस मार देगा, एंग्जाइटी मार देगी, जेलसी मार देगी, तकब्बुर मार देगा, हसद मार देगा, हिक्द मार देगा, ये सारी चीजें गिरा देंगी। वो जो तेरे उस दर्द को और तेरी सिस्कियों को और तेरी उन तकलीफों को नहीं समझ सकेंगे, बेटा इसको सुकूत लाना अपने अंदर, मुंह को खामोशी दो और कलेजे को आवाज दो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अमल के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तफक्कुर के साथ, तफक्कुर फिर शरा के साथ, अल्लाह के दीन में तफक्कुर, तफक्कुर फिर नास, लोगों के अंदर आप तफक्कुर करें, तफक्कुर फिल कौन, अल्लाह की कायनात में तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, तज़क्कुर करें, नसीहतों के बाप गरम करें अपनी जिंदगियों में। मन लैसा लहु उस्तादुन फउस्तादुहु अश-शैतान, the one who doesn't have a teacher, इमाम शाफी says, his teacher will always be devil। जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, उसका उस्ताद शैतान होता है। अपने मेंटर्स के साथ चिपक के रहना, क्योंकि 10 साल का सफर वो तुम्हें 10 मिनट में दे सकता है, वो अपनी पूरी 20 साल की जिंदगी का निचोड़ दे सकता है। तो एक कामयाब तरीन शख्स, अगरचे जंगें होनी है, मुकाबले होने हैं, लोग तुझे गुजरने नहीं देंगे, बेटा कुछ भी कर ले, जितनी मीठी जिंदगी को, हाँ फिर ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइंड लाइफ गुजारनी है, माँ ये चाहती थी, बाप ये चाहता था, लोग ये चाहते थे, ये चाहते, हाँ ठीक है, फिर फाइन, उसमें भी आएंगे। लेकिन असल जिंदगी का मजा वो है जब इंसान वो खींचे जो लोग सोच नहीं सकते थे, वो जो लोग चाहते नहीं थे, वो जो लोगों ने उम्मीद नहीं रखी हुई थी तुझसे, लेकिन तेरा दिल वहां पर कहता था आई एम मेंट फॉर दिस, मैं ये बनाऊंगा इसके अंदर। तो अपनी नफ्सियात से आजाद होने का प्रोसेस कब शुरू करना है, कब अपने ऊपर गौर फिक्र करना है, कब नफ्स अमारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाना है। और ये सारी स्ट्रगल के बीच में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है, इसमें दरवाजे बंद होने हैं, ये जिंदगी है, इसमें तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, हासिदीन सियासतें गरम कर देंगे तेरे खिलाफ। चाहे तू अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो या मैकाट्रॉनिक्स का हो या न्यूक्लियर का हो या किसी भी फील्ड का हो, ये बात समझी कि इंसान इंसान नहीं होता, इंसान का गोश्त खाता है बेटा, क्योंकि नफ्स की कमजोरी की वजह से वो आएगा। तो इस सफर के अंदर ये सब होना है, हसद के दरवाजे होंगे, तनकीद के बाजार होंगे, तेरी कमजोरियों को तेरी ताकत नहीं बनाई जाएगी, तेरी कमजोरियों को ब्रांड कर दिया जाएगा। लोग होंगे जो तेरे अंदर की कमजोरियों को देख रहे होंगे कि कहां इसको पकड़े, इसको मारने का तरीका मिले हमें, इसको कैसे निकलेगा इन रस्तों में से। अगर तेरा कलेजा गर्म नहीं है, हौसला नहीं है, सबर नहीं है, वुसअत नहीं है, जिगर नहीं है, इल्म नहीं है, और अल्लाह के बगैर कैसे चलेंगे आप इसके साथ। क्योंकि याद रखना बच्चों, जब जमीन के 4 दरवाजे बंद होते हैं ना, तो छत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, इंसान जितना भी सारे दरवाजे बंद कर दे, मगर गॉड कॉन्शियसनेस, ताल्लुक बिल्लाह, तज़किया एंड परफॉर्मेंसेस एंड इबादत एंड कनेक्टिविटी विद हायर बीइंग, ये आपको कभी भी दुनिया में रुसवा नहीं करेगी। आग आज भी गर्म हो सकती है बच्चों, मूसा चाहिए इस कौम को, और खूनी बर्दों व सलामा के तहत आग ठंडी भी हो सकती है, और खालिद बिन वलीद की तरह जहर अपनी तासीर भी छोड़ सकता है। गर हो मुसलमान का ईमान पैदा, इफ यू नीड दैट फेथ यू नो इन गॉड, वो नहीं है आज यहाँ पर। और एक टाइम पर आप कुछ भी कर लें, आप उन छुरों को रोक नहीं सकते। तो कभी घबराना नहीं इस चीज से जिंदगी के अंदर, लेकिन एक खास इंसान की जिंदगी जीने के लिए, एक खास ख्वाब देखने के लिए, एक खास उमंग बनाने के लिए, एक खास मार्क अचीव करने के लिए आपको अल्लाह भी चाहिए, लोग भी चाहिए, अपना आप भी चाहिए, प्रॉपर चाहिए, एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस पे चाहिए, और उसके बाद आपको ये कायनात चाहिए जीने के लिए। हम बाहर नहीं जा सकते। इन चारों को अगर आप मास्टर करेंगे, इंशाल्लाह आपका दर्द जो है ना, वो कौम का दर्द बन जाएगा, आपकी धड़कन कौम की धड़कन बन जाएगी, आपकी आवाज कौम की आवाज बन जाएगी, और आपका ख्वाब कौम का ख्वाब बन जाएगा एक दिन। और इसे अंग्रेजी में लेगेसी कहते हैं, एंड दैट्स वेयर लेजेंड्स आर बोर्न। कि जिन्हें डर है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, जिन्हें डर है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर जॉब नहीं मिली आगे तो क्या होगा,
जिन्हें डर है आगे शादियां नहीं हुई तो क्या होगा, जिन्हें डर है अपने इलाके बरादरी में नाम नहीं बना सका तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि फलां की चाचे की ताई की फूफू के पुत्र के मेरे साथ मेरा मुकाबला चल रहा है और मैट्रिक के अंदर अगर मेरी बी डिवीजन आ गई तो मेरा क्या होगा, जिन्हें डर है कि शायद मैं ज़ाहिरी लिहाज से खूबसूरत नहीं हूं, कहीं कोई उंगली ना पॉइंट कर दे, जिन्हें डर है कि कहीं कोई पैसे का ताना ना मार दे, जिन्हें डर है कि किसी को कोई औकात याद ना दिला दे, जिन्हें डर है कि कोई ये ना कह दे कि तुझे फलां नहीं आता, यूं नहीं आता, फोन नहीं आता, शो नहीं आता, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे वेस्टर्न कल्चर की पहचान नहीं, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे पिंडों देहातों की पहचान नहीं, ये डर जो लोग सदियों से डालते आए अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कि कहीं यहाँ पर एक बड़ा लीडर ना पैदा हो जाए, कि कहीं उनके अंदर का झूठ कल को उनके सर पे खड़ा ना हो जाए अगर एक इमाम खड़ा हो गया। तो लोग असल में माशरा सोसाइटी इसलिए नहीं डरा रहा होता कि वो खुद डरे हुए होते, वो इसलिए डरा रहा होता है ताकि उन्हें अपने आप को ये ना कहना पड़ जाए कि ये कैसे कर गया। तो जिंदगी बेटा इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स, ये बिच्छू, ये सांप और ये कुत्ते बिल्ले जिंदगी में रहेंगे बेटा, मगर शेर की शान 10 कुत्तों में, जो मेरे बड़े ने मुझे एक दफा कहा था कि पुत्र 10 कुत्ते भौंक रहे हुए तो 11वां ना बनी। शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों को, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो माशरों को एक माशरा दे के चला जाता है, जो कायनात को अपनी एक कायनात दे के जाता है, जो फलसफों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है, बेटा उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुदी, उसकी मैं, तकब्बुर वाली नहीं मैं, एतमाद वाली मैं कि मैं हूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं। यू कैन नॉट डिफाइन मी, यू कैन नॉट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कैन नॉट लिमिट माई ड्रीम्स। मेरी जीत भी मेरा, मेरी हार भी मेरी, मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तू कौन होता है मेरा मजाक उड़ाने वाला। आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपने आप को, तू क्या बर्बाद करेगा मुझे, मैं बर्बाद कर देता हूं अपने आप। जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू। जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंद को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी, तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें। Why do you want public recognition? What matters is you. You are important for yourself, not me. मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए। डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें। खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है। किसी को चढ़ी होती है ना कि मैं फौरन फैसला कर दूं, वहां डर अच्छी चीज है, वो उसके कदम को रोकती हैं, वो उसकी जज्बातियत को लगाम लगाती है। वो खौफ उसकी 2 रुपए के अंदर 2 मिनट के अंदर सक्सेस के लैडर पे चलने को लगाम लगाती है। खौफ इज नॉट बैड, खौफ लिमिट्स योर बेढंगापन, खौफ आपकी बद तहजीबी बदतमीजियों को लिमिट लगाता है, यहां तो अच्छा है। मगर वो खौफ जो शक पैदा कर दे, वो खौफ जो कदम स्ट्रेटेजिकली नहीं पीछे रोके, इसलिए पीछे रोक दे कि लोग क्या कहेंगे, मेरा अपना आप क्या कहेगा, मैं माशरे को फेस कैसे करूंगा, मैं इस एक्सीलेंस के लिए कदम बढ़ाने में ऑफ द ग्रिड रेवर से हट के अगर मैं हट गया पीछे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। बड़ा खौफ यही होता है। उसके बाद एक और खौफ है कि मेरा अपना आप मुझे क्या कहेगा अगर मैंने ये काम कर दिया। आज अगर मैंने वक्त जाया करना बंद कर दिया, पार्टी करनी बंद कर दी और फजूल में टाइम वेस्ट करके फलां दोस्त को खुश करना बंद कर दिया, फलां मुंह को मुंह देना बंद कर दिया, कहीं वो क्या कहे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा खौफ एक इंसान को नहीं दे सकता। दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान खुद अपने आप को देता है। There are 2 battles inside you बेटा, 2 जंगें चल रही हैं तेरे अंदर। एक तेरे अंदर का वो इमाम है जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया था, एक तेरे अंदर की वो हैसियत है जिसके साथ तुझे अल्लाह ने पैदा किया था, एक तेरे अंदर वो पहाड़, वो आतिश फिशा है, वो आग है, वो तूफान है, वो हवाएं हैं तेरे अंदर जो तुझे लेक जो बना था वहां ऊपर जाने के लिए। और दूसरा तेरे अंदर का आप है इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू के तहत, वो तुझे लिमिट करता रहेगा, डराता रहेगा, जलील करता रहेगा। अपनी औकात, अपनी हैसियतें, लोग, माशरा, सोशल कन्फॉर्मिटी, सिस्टम, वो तुझे बताता रहेगा औकात में रहे।
हैसियत में रह, जो लोग हैं वही करना है, और वो तेरी जिंदगी में सक्सेस को डिग्री, जॉब्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, गाड़ियां, 2 कनाल, 4 कनाल, 1 एकड़, यही दिखाता रहेगा कि ये नहीं है तो तू खत्म हो जाएगा। सक्सेस की डेफिनेशन इंसान के किरदार का इर्तिफा नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन हिस्सी फिजियोलॉजिकल लिहाज से गाड़ियां, दौलत, पैसा, सोसाइटी, सोशल सर्कल। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारते हैं बेटा, और तू लोगों की परवाह कर रहा है। अपने आप से मुलाकात कर, क्योंकि शुरुआत में भी कोई नहीं होगा और सफर में भी तुझे बाजू नहीं मिलने। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा। लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट वेनमस जर्नीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज नहीं करता, तेरी जिंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकदमा लड़े। अपनी जुबान से लोगों को कायल करेगा, अरे तेरा अपना आप नहीं कायल होगा। तू लोगों को कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तू लोगों को कह रहा है meant for something, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. लड़ने दे कायनात को तेरा मुकदमा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत मुस्बत, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, नफ्स की पाकीज़गी, अपने अंदर की सियासत, अपने नफ्स की गुलाटियां, अपनी परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी मोहब्बतें, अपनी उम्मीद, अपना खौफ, अपना गुस्सा, इसे टोन डाउन करना सीख पुत्र। इसको संभालना सीख और इसको बनाना सीख। आज करेगा तो 20-22 साल में कहीं संभाल लेगा अपने आप। तुझे पता होगा कि तेरा नफ्स कहां से 2 रुपए की चीज लेके आता है तेरे अंदर, कहां से डर पैदा करता है, कहां से शक देता है, कहां से डिजायर देता है। मगर अगर आज से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग नहीं हुई, सेल्फ डेवलपमेंट, नोइंग द बेटर यू, एनहांसिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर माइंड मैनेजमेंट एंड माइंड साइंस, तो बेटा आगे तुझे बर्बाद करने के लिए तोपे और टैंक नहीं चाहिए होंगे। तेरा अपना आप मार देगा तुझे, तेरा अपना आप रोकेगा तुझे। और साहिल पे बैठे बुज़दिल और कायर, काश अगर मगर, कुएं में बैठा हुआ मेंढक काश अगर मगर के साथ ही रहेगा कि काश कर लिया होता, काश आई वुड हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ, काश मैंने छलांग लगाई होती, काश समंदर और दरिया के उस पार के लिए मैं एक बार अपने आप को एक मौत तो देता ही देता, शायद 10,000 हयात दे देता अल्लाह मुझे आगे। काश मैं मर जाता वहां पर तो अच्छा था, और काश मैं जी जाता वहां पर तो अच्छा था। तो ये काश के साथ बेटा जिंदगी, फैसला तेरा होगा। अल्लाह तुझे भी वो गुमनामियां नसीब करे जिसके बाद सिर्फ नाम ही नाम होगा तेरा। अल्लाह तुझे वो गुमनामियां नसीब करे पुत्र, जब तेरा इतना नाम होगा कि लोग सिर्फ तेरे देखने के लिए कीमत दे रहे होंगे, और तू डर के बैठा है कि लोग क्या कहेंगे, or what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter. तेरी जीत भी तेरी बच्चे, तेरी हार भी तेरी, तू तेरा हो गया तो गल खत्म। लोग क्या कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, it doesn't matter. अगर ये सोच लाएगा तभी तो तू कौमों के रेवड़ को अपनी तरफ मोड़ सकता है। तेरी आवाज में वो दर्द, तेरी तकरीर में वो सोच, तेरे कलेजे में वो धड़कन तब पैदा होगी बेटा जब तू सच्चाई को कबूल करेगा अपने साथ। और फिर ये फेलियर, ये शिकस्त, it doesn't matter. Be like a tree. When the world hits stones on you, give them back apples. लोग तुझे जब पत्थर मारे पुत्र, पत्थर ना मारी, फल दी कौम, कट जाई मर जाई लोगों को। एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता, वो अपनी जीत भी दे जाता है, अपनी हार भी दे जाता है। लोग बेटा इतने छोटे ज़र्फ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा जिंदगी में जलील हो जाएगा। लोगों को मेरे नबी की तरह जान दे के चला जाए, बड़ा बन, अपनी हैसियत से बड़ा बन, खाना खिलाया कर लोगों को, गुर्बत में फकीरी में खाना खिलाया कर पुत्र लोगों को, बर्बादी में मुस्कुराहट होनी चाहिए तेरी शख्सियत में वो दम होना चाहिए कि जब कुछ ना बिके, किरदार बिक जाए या रोस्ट्रम पे तेरा दर्द बिक जाए आगे से। बेटा अपना दर्द बेच दी बेटा, अपने आप को इतना बड़ा करना है तूने कि लोग तेरे दर्द में अपना दर्द भूल जाए। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन बेटा। जिंदगी के सबसे बड़े सफर, सबसे मीनिंगफुल सफर, सबसे रिसोर्सफुल सफर, सबसे यादगार सफर अकेले होते हैं बेटा। लोग नहीं होंगे तेरे साथ, अकेला होगा बच्चे तू, याद रखिए, घबराई ना। बड़े बड़े कबीले तेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन शुरू में नहीं हो गए, घबराई ना पुत्र, मैं तुझे कह रहा हूं घबराई नहीं। वो दिल जो रात को धड़केगा ना तनकीदों की वजह से, वो सीना जो छलांगे मारेगा बेड के ऊपर घबराहट के, वो लोगों की बातें जो तेरे कलेजे के चीर के तेरे टुकड़े कर देगी बेटा, वो लोगों की उंगलियां, वो तनकीदें जो तेरे नीचे से तेरी टांगे काट देंगी बच्चे,
घबरा ही नहीं पुत्र, मैं तुझे कहता हूँ थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सदियां दे, अपने आप को एक सदी बनाने के लिए कुछ सदियां तुझे घोलनी पड़ेंगी बेटा। चलता रही, सीखता जा, गिरता जा, लड़ता जा, और अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ी बेटा। इस पूरे सफर में जब दुनिया तेरे साथ नहीं होगी, तेरा खुदा था, कल भी था, आज भी है, इंतहा में भी। और ये जुमला अपने अंदर लेके आ कि लोगों को तू ये कह सके कि मैं कोई पीछे से नहीं लेके आया था, जो भी बनाया मैंने आज अल्लाह की दुनिया थी, वसखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन के तहत यही बनाया मैंने। ये सब चला भी गया, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। और बेटा अगर अल्लाह है, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तेरे पास, ये तेरा क्या छीन लेंगे तुझसे। इसलिए तो एक बड़े आलिम दीन ने 700 साल पहले कहा, लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, अगर तुम जेल में डालोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी मिल जाएगी, अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे शहरों से तो हिजरत का ज़र्फ और शर्फ मिल जाएगा मुझे, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने ख्वाब तक पहुंचने की राह में अगर शहीद का दर्जा ही मिलना है, तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है बेटा। बेटा जिंदगी के अंदर जब डर लगे अल्लाह को याद करी, जब डर लगे डर को डरा दी उस टाइम, डर को एक डर बख्श जा, खौफ को एक खौफ बख्श जा, जिंदगी को एक फलसफा बख्श जा बेटा। किनारे पे बैठ के काश अगर मगर की जिंदगी से बेहतर है, कम इन द वॉर, सामने आ, डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा, फैसला तेरा है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। एक है सबर अपने आप के साथ, पेशेंस। द फर्स्ट रेसिपी ऑफ विजन मैनेजमेंट इज एंड सक्सेस इज अनडिफाइंड सबर, अनक्वांटिफाइड सबर। इतना सबर कि इंसान कहे मेरा जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देगा, मेरा जवाब मैं नहीं मेरी कौम देगी, मेरा मुंह मेरा जवाब नहीं देगा, कायनात का मालिक जवाब देगा मेरी तरफ से। इतना सबर अपने नफ्स की शॉर्टकमिंग्स पर, अपनी नफ्स की कमजोरियों पर, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में कंसंट्रेशन रिस्पांस टाइम के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर, लोगों की धुतकारों के ऊपर, सीवी रिजेक्ट होने के ऊपर, और धक्के खाने के ऊपर, और उन तन्हाइयों के अंदर जहां लोग तेरे अंदर का वो जिन नहीं देख सके, जहां लोग तेरे अंदर का वो आतिश फिशा ना देख सके, उन वक्तों का सबर जब तुझे वैसे ही मार्केटिंग में बुला लेंगे, जब तू मशहूर हो जाएगी और हो जाएगा। उन वक्तों का सबर जब कोई नहीं जानता होगा कि यार ये वाकई फ्यूचर का एक फ्यूचर जा रहा है यहां से। उन वक्तों का सबर जब लोग नहीं जानते होंगे, आज इससे बात करने के लिए भी इसको ओए ओए करके बुलाते हैं, कल इसके मार्केटिंग हेड को मैसेज करना पड़ेगा यार इनसे एक लेक्चर दिलवा दो। वो सबर के लोग उन कब्रों में तुझे गिरा के आएंगे और ऐसी सरों पे गोलियां मार के आएंगे कि तू हेड शॉट के बाद उठ ना सके। इतना सबर तुझे चाहिए बेटा। मुंह से कायल करेगा ना तो इस शहर का कोई जानवर भी नहीं तुझे सुनेगा, और तू लोगों को कायल करना चाह रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। बेटा अपने अमल से प्रूफ करता है आदमी। इतना सबर के मुंह को टेप लगा ले। स्टॉप यापिंग फ्रॉम योर माउथ एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी। इतना सबर। मारने दे इन्हें खंजर तेरे छातियों पर, मारने दे इनको खंजर अपने ऊपर, कोई गम की बात नहीं है। अबे ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गिरबानों के ऊपर छुरे मारे गए हैं। वो लीडर ही क्या, वो जो शुरुआत में डिस्कवर हो जाए। जब वो डिस्कवर होता है ना तो गोल्ड कोस्ट जैसी फिर चैनल्स के ऊपर ना उसकी मोटिवेशनल वीडियोस चलती हैं। फिर जब वो डिस्कवर होता है ना तो फिर वो टोनी रॉबिन्स और स्टीवन कवी जैसे लोग बन जाते हैं। जब वो डिस्कवर होता है ना तो वो अल्लामा इकबाल होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होता है। फिर वो बट अ टैलेंट एंड अ जीनियस विल ऑलवेज बी डिस्कवर्ड। बेटा गलत रास्ता अख्तियार ना करिए अपनी मंजिल तक के लिए। अपने उसूल अपनी वैल्यूज का गला ना घोंटी कभी। अपनी जात को चंद टकों के आगे बेचना नहीं कभी। तेरे आइडिया को बाहर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, लोग भी लगेंगे और टीम भी लगेगी। सबर, इतना सबर, मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है। वकानु भी आयाती ना युकिनून, यकीन भी रखी। पॉजिटिविटी, यकीन अमल प्रोड्यूस कराता है, यकीन पॉजिटिविटी निकालता है। यकीन जो गाल पे थप्पड़ मारता है ना उसको स्माइल देता है। कोई मसला नहीं सर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज हम आपसे मांगने आए हैं, कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा। लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं और आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौन आपको नो करेगी उस टाइम पर कि ये हम आपको नहीं दे सकते। मैं इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करूंगा क्योंकि मैं गैरतमंद भी हूँ, गयूर माँ बाप की औलाद भी हूँ, किसी बेहया का खून नहीं हूँ। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू कॉन्कर डेस्टिनीज। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू नेल डाउन हिज परसेप्शन इन पीपल्स हार्ट। वो गम ही नहीं होता बेटा, विजन में अपना तो गम ही नहीं होता। कौन होती है? लोग होते हैं। लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ। सिर्फ दर्द होता है, वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है, बंदा कहीं नहीं होता। और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को।
اور آپ سوچیں گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکیٹنگ HR کا آدمی کہے گا کہ بھائی جان میرے پاس 20,000 روپے نہیں ہے 25,000 نہیں ہے. آپ کو اپنے لوگوں اتنا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پر ریسورس نہیں ہے بیٹا, لوگ نہیں ہے تیرے ساتھ, تو چھوٹی سی کمپنی ہے اور پہلے تو ہی HR ہوگا, تو ہی کارپوریٹ مارکیٹنگ ہوگی, تو ہی سیلز ڈپارٹمنٹ ہوگا, تو ہی سب کچھ, تو CEO بھی تو, اور پوری کمپنی کا وہ جمع دار بھی تو جس نے اپنے ان کپڑوں سے پوچے لگانے ہوں گے. کوئی نہیں ہوگا تیرے ساتھ, ہار نہ مانی. آج تو پاتیک فلپس, رولیکس, رسل اینڈ بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں, یہ سب تیری قدموں کے اوپر آ جائیں گے ایک دن. تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا, جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے. جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے, میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی. ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندھوں پہ انٹریاں مارے گا یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کی. لیکن گھبرا نہیں, یہ وقت مشکل ہوتا ہے. خواب دیکھنا سب سے عظیم ترین کفر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا, اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈرل ڈاؤن کرنا, نیل ڈاؤن کرنا, اور پھر بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی, 4 گاڑیاں اور نکل جائے گی اور اندر سے آواز آئے گی چھوڑ دے بھائی, تو نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتی. نہیں, یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں, یہاں ایسی خاموشیاں ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے. سو اٹس اے گیم آف مسل اینڈ اٹس اے گیم آف اسپرٹ اینڈ اٹس اے گیم آف اسٹریٹجی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے وہ گینڈے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے, حالانکہ وہ کام اسٹریٹجکلی کیا جاتا تو کم ریسورس ضائع کیے ہوئے جلدی ہو سکتا تھا. اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلاننگ کے چیتے ہوں گے, پلاننگ چل رہا ہوگا لیکن مسل ہلانے نہیں ہے, کبھی بیٹھے ہوئے کتابیں لکھ دی ہوں گی یوں ہونا ہے مگر ایک انیشیٹو نہیں لیا. سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا, اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی, اور وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا, اور وہ عزم جو قصد نہ بن سکا, اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا, اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا, اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا, اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا, ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمثل حمار یحمل اسفار, یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ہیں. ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے, اس کا معراج. جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں, بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کبھی, اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ, اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے ہی کہیں بھائی جان یہ آپ کا ویزا ہے, واپس چلے جائیں, اس ملک اور اس وادی میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلے پنوں کا گیم ہے. شکوک اور شبہات اور اضطراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس پوری اسٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے, اپنا آپ منوانے کے لیے, اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے. 40 سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ he was the master of the ones before him and the ones to come after him. لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے اس جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے, کنسسٹنسی, کانشیسنس, سرٹنٹی, یقین, صبر, استقلال, تحمل, مستقل مزاجی, دوام, اور اس کے بعد روحانیت, اسپرچویلٹی, تعلق باللہ, تزکیہ, تعلیم, حکم کے ایسے باب باندھے ہیں. اس نیچرل کیپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایز اے ہیومن بینگ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was the biggest phenomenon in a human life that can happen. ایک شخص اتنی ایکچولائز لائف کیسے جی سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات, محبت, غضب, دکھ, درد, امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں, یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں, مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ, اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ, اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ. اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. اس میں انسان کو اصول چاہیے, اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے, اس میں انسان کو نظریات چاہیے, تفکر چاہیے, تفکر فی الشرع چاہیے, تفکر فی الکون چاہیے. اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این ought فار می ٹو ڈو اٹ. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے, میں نے اس کو نیچے لگانا ہے, میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے, میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے. ویژن بنایا اس لیے جاتا ہے because it is the ought of the time. یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے, اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید
अर्श के बादशाह ने मुझे चुना है इसके लिए, मैं क्लेम नहीं करता, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो तकब्बुराना मिजाजों के साथ जहां नफ्स में हसद हो, बुग़्ज़ हो, तकब्बुर हो, कीना हो, ये छोटी सेल्फ सेंटर्ड इंट्रोस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ इमामतें और क़यादतें नहीं होती भाईजान। सफर बहुत लंबा है। आपको लोग चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, आपको टीम चाहिए जो कम पैसे में आपके साथ काम करे। अगर आपके मिजाज के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये छोटे छोटे मसाइल हैं, आप दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, आप रिसोर्स जाया करेंगे, आप अहल की नाकदरी करेंगे, आप मेरिट को उठा के फेंकेंगे और आप अपने इर्द गिर्द वो लजना बनाएंगे जो खुशामद परस्तों की। अगर आपने यही करना है तो भाईजान मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी की जंग में वो शख्स जो आपके मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी वैल्यूज को प्रॉपर करके लाया होगा, आप नहीं जीत सकते उससे। अगर वो अल्लाह लाएगा जंग में अपने साथ एक मशीन चलाने के लिए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लाएगा उस जंग के अंदर अपने साथ, और वो बुजुर्गों के तजर्बे लाएगा अपने साथ, वो माँ बाप की दुआएं लाएगा अपने साथ, फील्ड के आइंस्टाइन की थ्योरीज लाएगा अपने साथ, और दुनिया के अंदर कॉन्टेम्पलेशन लेके आएगा उन वक्तों में जहां हम पार्टियां कर रहे थे, जहां हम लगे हुए थे इधर उधर मस्तियों के अंदर, because we thought life is a walk in a park and peas and carrots। अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट लाएगा, अगर वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट लाएगा, आप उससे नहीं जीत सकते। उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप करता है कि वेल डन ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव कंपटीशन में तेरे साथ ही खड़े होंगे, एंजॉय योर सक्सेस, ऐसे पट्टे को आप नहीं हरा सकते। जिस इंसान में छोटापन हुआ, उसकी नफ्स के अंदर शख्सियत के वो गलीज जरासीम हुए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये महाजिर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये सराइकी है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये एलीट क्लास का, ये मिडिल क्लास का, ये हाई क्लास का, ये लोअर क्लास का। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मर्द हूं, ये औरत है। वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखता है। और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये लिबरल है, ये मौलवी है, ये फलान है, ये मिड है, ये क्रूजी है, ये फलान है, ढिमकाना। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसानों को, वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और ख्वाबों को तकमील करने के लिए बेटा बाजू चाहिए होते हैं, और लीडर होता ही वो है, विजन होता ही वो है जो अपने अंदर कायनात को इनकम्पास कराता है, वो मैग्नेटाइज कराता है कौम को अपने अंदर कि आई एम द मैन एंड आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। और वो अल्लाह को भी कन्विंस करता है कि तू पूरी कहकशां फलक घुमा मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं खड़ा हूं यहाँ पर। And as Allah says, Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Ana inda dhanni abdi bi", मैं बंदे के गुमान के मुताबिक। तू कंजूस आएगा, तुझे कंजूसी मिलेगी। तू गनी होके आएगा लोगों से, हम तुझे वो गनी दिखाएंगे जो तू देख नहीं सकता कभी। You come the way you come to me and I'll give you the way। तू एक कदम बढ़, हम 10 दुनिया, हम पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएंगे, लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा। तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियरल साइकोलॉजी, परसेप्शनल बैलेंस, इन अल्फाज के साथ तू आ, तू हाथ रखेगा हम सोना कर देंगे। और देख, अगर ये चीजें नहीं है, सफर लंबा है। सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं। सफर लंबा है अगर आप नफ्स की शोहरत चाहते हैं। सफर लंबा है अगर आप तारीफों के भूखे हैं। सफर लंबा है अगर आप पैसे दौलत के लिए कर रहे हैं। सफर लंबा है अगर आप लोगों को झुकाने के लिए कर रहे हैं। सफर लंबा हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग वॉक। पहला सबक आज सीख के जाना बेटा, ये बहुत लंबा सफर है। सदियां हैं, तन्हाइयां हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद है। और सोचें, वो जो एक उनका साथी था, जब वो जाने लगा तो सूरह यूसुफ पढ़िएगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई जाके उसको बताना मेरे साथ एक औरत ने ज्यादती की थी, वो भूल गया। तेरे भी आइडिया को सुनने के बाद लोग भूल जाएंगे बेटा। कोई याद नहीं रखेगा कि पाकिस्तान कराची के शहर में एक जीनियस था, बल्कि प्लेजरिज्म के बाप मिलेंगे तुझे। लोग तेरा आइडिया लेके उसको क्योंकि उसके पास मशीनरी ज्यादा है, उसके पास मार्केटिंग हाउस बड़ा है, उसके पास बजट बड़ा है, तेरे पास आइडिया बड़ा है, वो तो उससे उठाएंगे बेटा और खुद रेनोवेट करके ऐसी बड़ी कोक और पेप्सी की इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। जीनियस वहीं मर जाएगा। इन मगरमच्छों में तूने मकाम बनाना है बेटा अपना। तो पॉइंट इज फॉर यू टू बी समथिंग लार्जर देन लाइफ इन लाइफ। जिंदगी में मौत के उस बिस्तर पे लेटते हुए इंसान को जो इत्मीनान होता है कि मैंने एक शेर की जिंदगी जी, मैं कायर की मौत नहीं मरा, मैं लोगों के डिफाइंड वैल्यूज पे नहीं चला, मैंने मुल्क को भी सर्व किया, मैंने दीन को भी सर्व किया, मैं कौम को भी सर्व करके गया, और फख्र से मैं आज अपनी मौत को एम्ब्रेस करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं वजालना मिनहुम अइम्मा, हम इंसान को जो सिर्फ इंसान होता है, अइम्मा इन अरबिक इज द जमा ऑफ इमाम, हम उसे इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं अपनी फील्ड में, सिग्नेचर बनाते हैं कि वो हाथ रखता है और वहां डेफिनेशंस लिख दी जाती हैं। इतना तजर्बा होता है कि वो जो बोलता है वो एकेडमिक्स बन जाती है उस टाइम के ऊपर। हम उस इंसान को जो कुछ भी नहीं था, जो कहीं रोडों में, कहीं बसों में, कहीं पीले स्कूलों में, कहीं टाटों में बैठा हुआ धक्के खा रहा था, हम उसे इमाम बनाते।
जिंदगी एक लंबा सफर, और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जमाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को और अपने उन वबाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर, वो एहसास देना शुरू कर। अगर नहीं करेगा तो इस आयत में ही तेरी और मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा कि अल्लाह कहता है इंशा युज़हिबकुम वयाती बिखल्किन जदीद। अगर तू नहीं करेगा, ये मकाम और ख्याल नहीं पैदा करेगा, तो हम नए लोगों को ले आएंगे एंड यू विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जिन्होंने बड़ाइयों को एक बड़ाई बख्शनी होती है जमाने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती दो चीजें होती हैं जिसको वो अपनी जान और जिंदगी से ज्यादा कदर करते हैं। एक है वक्त और दूसरा है तजर्बा। तो अभी तजर्बा भी नहीं है, एक चीज को देखने के 10 एंगल नहीं है, एक मसले को देखने में तनव्वुर और नौयत नहीं है, और फिर सोल्यूशन और फतवा निकालने में भी तेरे अंदर तनव्वुर और नौयत नहीं, क्योंकि उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है अभी। लेकिन तेरे पास एक चीज है, वो अगर इस उम्र में हो तो मैं तुझे शर्तिया कहता हूं, अगर मरने से पहले तू मेरी उम्र तक पहुंचा या तू अपनी मिड-20s और मिड-30s तक, तो सिवाय दुआओं के हमें कुछ नहीं देगा। वो है जज्बा और हौसला अपने आप को थाम कर रखने। यू हैव द विल राइट नाउ। अगरचे तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तूने शादियां नहीं की बेटा, अभी तूने बच्चे नहीं पाले, अभी तूने शरीके को मुंह नहीं दिया, अभी तक तूने बाप के शरीके को भी नहीं संभाला हुआ, तूने माँ के शरीकों को भी नहीं संभाला हुआ, तूने लोगों की सियासतें नहीं समझी, हसद बुगज नहीं देखे तूने अभी, किस तरह लोग गेमें करते हैं, किस तरह लोग टांगे काट देंगे तेरी, किस तरह लोग तुझे इस्तेमाल के थूक के फेंक देंगे, किस तरह तेरा ही आइडिया जीनियस अगर बैठा है पंजाब कॉलेज में या कोई बड़ा जीनियस, जीनियस क्या होता है? जिसके पास आइडियाज की भरमार हो लेकिन मार्केट और सेलिंग नहीं आती, मार्केट ना हो उसके पास, पैसा ना हो उस जीनियस के पास। तो ऐसे कितने शहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली ज़हनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम पर, मगर उनके पास मार्केट नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तक तू एक बन जाएगा वो चीज के पैसा भी खुद आएगा, लोग भी आएंगे तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे पास सिर्फ अपने पास एक चीज है कि थाम के रखना है, वो विल, वो हौसला और वो मुस्बत ख्याली कि एक दिन आएगा और वहां तक मैंने जाया नहीं करना। और उस वक्त जब मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा और उस दिन अपना गीत सुनाऊंगा जब, तो मेरी उस 1 घंटे की तकरीर के अंदर 1000 दिलों में भी जरूरत नहीं हो आगे से एक ख्याल मेरे मन से जाने के लिए, मैं पूरा का पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा वहां तक जाने के लिए। तुझे बहुत जमा करके रखना है अपने आप को पुत्र, तुझे बहुत इकट्ठा करके रखना है अपने आप। चलती हुई गाड़ी पे से तूने छलांग नहीं निकाली है, तुझे पता होना चाहिए वक्त कम है तेरे पास और तकलीफें, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत कम, दोस्त भी कम है, सज्जन भी कम है, और जिंदगी में सबसे बड़ी रहमत भी कभी कभी होती है, दुश्मन भी नहीं होंगे तेरे पास म्यारी इस टाइम पर, क्योंकि म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ सिखा जाता है, म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ बता जाता है, और दुश्मन से जंगें तो इंसान को पावरफुल करती हैं। तो जिंदगी में ग्रो करने के लिए तुझे दुश्मनियां भी बहुत कमाल की चाहिए, तुझे दोस्तियां भी बड़ी कमाल की चाहिए, तुझे अपने आप से जंग भी बड़ी कमाल की चाहिए, और उसमें रहनुमाई और औसाफ भी बड़े कमाल के चाहिए। तो इस टाइम पर तेरे पास सिर्फ एक चीज है, ये किताबों के रट्टे, ये रगा तू डिग्रियां हासिल करने के लिए ठीक है, ये लोगों को खुश करने के लिए अच्छी बात है, मगर वहां जहां गीत बिकता है और चीज बनती है और चीज आगे जाती है, वो है तेरे अंदर का आप। इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके जिंदगी में, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी, और कुछ कितने ही माठे लोग थे, माठे से लोग थे, मगर कायनात को एक कायनात बख्श के चले गए, क्योंकि उनके कलेजे के अंदर बड़ा हुस्न, जिगर और वसअत थी, तनव्वुर था, तौसीह थी, उसके अंदर उसूल थे, तरकीबें थी, तदबीरें थी, मामलात थे, तफक्कुर था, तदब्बुर था, तज़क्कुर था, नसीहत थे, बल आता था उन्हें जिंदगी जीने का और जिंदगी चलाने। तो इस टाइम पर अगर तू अपनी, क्योंकि अभी जिंदगी तेज नहीं, शादियां नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, सियासतें गर्म नहीं हुई, लोग तेरे खिलाफ नहीं हुए, तो इब्लीस अभी इकट्ठे नहीं हुए तेरे खिलाफ, शैतानों को मिर्च नहीं लगी अभी तेरे खिलाफ, मिजाजों को तेरे खिलाफ अभी मिर्च नहीं लगी, उनको मिजाज तेरे खिलाफ नहीं हुए। वक्त है तेरे पास कि तू अपनी बुनियादी सोच को पक्का कर, रोज पक्का कर, वो टूटेगी इस उम्र में फिर पक्का कर, वो टूटेगी शक में जाएगी फिर इकट्ठा कर, वो बदमाशियां करेगी, वो अंदर से ख्वाहिशात का बाजार गर्म करेगी फिर इकट्ठा कर, फिर उसूलों को, सदाकत को, अमानत को, सच्चाई के सबक को फिर जिंदा कर, फिर टूटेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि किस तरह सब्र किया जाता, किस तरह मैं कंसिस्टेंट हूँ, किस तरह मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाजी बनाऊं, मैं चलता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं चलता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं पकड़ता हूं वो फिर बिखर जाता है, एक सिरा पकड़ता हूं वो दूसरा सिरा निकल जाता है,
उम्मीद संभालता हूँ खौफ निकल जाती है, खौफ संभालता हूँ उम्मीद चला जाता है, उम्मीद खौफ थामता हूँ मोहब्बत दम तोड़ देती है, मोहब्बत संभालता हूँ तो गुस्सा अपने टैंक लेके और तोपे लेके आ जाता है, उसे मुंह देने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से शक आ जाता है, शक संभालने की कोशिश करता हूँ तो आगे से मैसेज आ जाता है, मैसेज संभालने की कोशिश करता हूँ तो शहावत आ जाती है। सब्र कैसे करूं मैं, हब्स नफ्स, ये अपने आप को रोकूं कैसे कि मैं एक दिन बाहर आके मौला जट ना बन जाऊं, मैं कैसे रोकूं अपने आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वहां, आपने कहा सबर बे तसब्बुर, सबर करने कराने से आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं आता। सबर तुझे करके आ जाएगा सबर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, कोई करिकुलम नहीं है, कोई निसाब नहीं है सबर का, सबर करने कराने से आता है बेटा। दूसरा सवाल हुआ मैं आजिज नहीं हो पाता, मैं हम्बल नहीं हूं, हर वक्त ही मैं मेरे अंदर, मैं आजिज और हम्बल होना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे अंदर, कैसे आजिज हूं। आपसे ने फरमाया अल हिल्म बितहल्लुम, आजी करने से आती है, तू करेगा तू करते कराते हो जाएगा। तू मिजाज ला अपने अंदर लोगों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने अंदर अपने इल्म की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपनी हैसियतों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने माँ बाप की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने इन इदारों की इज्जत करने का, तो इल्म वालों का लोटा उठाने वाला बन, तू खुद इल्म का एक पहाड़ बन जाएगा। आजी करने से आता है। और तीसरा सवाल किया किसी ने, ये इल्म कैसे आता है, हाउ डू बिकम नॉलेजेबल। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कितनी गहराई, अल इल्म बितालीम, इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है। तू जो सीखेगा जब सिखाएगा और अमल करेगा तो खुद इल्म की एक दस्तगीर बन जाएगा उस टाइम, तो खुद इल्म की एक क्षमा बन जाएगा उस टाइम। ये सब करने के लिए कि मैं अपनी इस उम्र में और इससे आगे जो स्टेशन है और फिर उससे आगे जो स्टेशन है और फिर जो उससे आगे स्टेशन है, और हर स्टेशन पे जंगे हैं और हर स्टेशन पे बलाएं हैं और हर स्टेशन की मर्जिल्लत हैं और हर स्टेशन पे इज्जत हैं और हर स्टेशन पे मसाइल हैं, वहां संभालने तक के लिए जंगों के अंदर इल्म हासिल नहीं किया जाता, अमन के वक्तों में तैयारी की जाती है जंगों की। ये है वो वक्त जब तुम्हें जमा करना है, इकट्ठा करना है। तो मेरा सवाल है मेरे बच्चों से, मेरे बेटों से जो यहाँ बैठे हैं, खून बैठा है मेरी कौम का, तू ये बता, तू ये वक्त कैसे जाया कर सकता है पुत्र, तो कैसे कान दे सकता है उस फजूल इंसान को जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है कल को जब तू तन तना खड़ा होगा, जब फैमिलियों में तुझे इज्जत नहीं मिल रही होगी, जब तेरी बीवी को भी इज्जत नहीं मिल रही होगी क्योंकि तू माठा था, जब तुझे दोस्त भी मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि तू माठा था, जब तुझे किसी ने महफिल में बुलाना नहीं है क्योंकि तू माठा रह गया, तू पीछे रह गया, जब तू डिग्री नहीं हासिल कर सका और तू काम नहीं कर सका और तू कमा नहीं सका, क्या जवाब देगा उस टाइम पे? लोग कितनी कौमों को कन्विंस करे? तो बता आगे जो आगे के वक्तों में तुझे गद्दारियां जो तेरे साथ होंगी, जो बेवफाइयां खड़ी हैं आगे तेरे, जो चलते फिरते तेरा फोन ही नहीं उठाया जाएगा, तेरे मैसेज का जवाब नहीं आएगा, लोग तेरा कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं करेंगे, तेरा माल बिकेगा नहीं, तेरा गीत सुना नहीं जाएगा, बता कैसे संभालेगा अपने आप? क्योंकि अल्लाह भी तूने नहीं तलाश करना और मैंने रब के पास जाके भी साइकोलॉजी और नफ्सियात मजबूत नहीं करनी, अपने आप को वैसे भी मजबूत नहीं करना कि मैं हूं, किसी के हाथ का खिलौना नहीं कि कोई इस्तेमाल करके चला जाए, मैं खुद अपने आप को नहीं खेलने दूंगा अपने आप से, तो खुद ही भी मजबूत नहीं करनी, रब के साथ भी उलूहियत और उबूदियत मजबूत नहीं करनी और कायनात पे भी गौर फिक्र नहीं करना, तो फिर हम बनेंगे वो काश अगर मगर कुएं में बैठा हुआ मेंढक जो चाय के ढाबों में बैठ के या कैफे शॉप्स पे कह रहा होगा पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो आज तू मेरे पूरे कलाम में से सिर्फ एक नुक्ता निकाल के ना किसी को बताए बगैर बांध ले अपने कपड़े के साथ और अपने सीने के साथ लगा के, और किसी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ तेरे आपसे ताल्लुक है। आई विल नॉट अलाउ पीपल टू टेक मी एज अ गार्बेज और अ ट्रैश कैन ऑफ ग्रांटेड। ये मेरी जिंदगी है और मैं इज्जत करता हूँ इसकी, और अगर आज मैं इज्जत करूंगा इसकी तो इसका वकार लोगों के सीनों में भी पैदा होगा। मेरी गले के अंदर मेरी आवाज में वो दर्द तब पैदा होगी जब मैं अपने कलेजे को दर्द दूंगा, मैं लोगों के सीनों का एहसास और गरमाइश तब बनूंगा जब मैं अपने सीने को गरमाऊंगा, कंटेन करूंगा उस आग को अपने। 2 मिनट में फट जाना, 2 मिनट में लड़ाइयां झगड़े करना, 2 मिनट के इश्क और 2 मिनट की लड़ाइयां, ये झगड़े बेटा इससे कुछ पैदा नहीं होता सिवाय बेइज्जतियों के और रुसवाइयों के। तूने अपने आप को बनाना है, पढ़ाई कर, तुम याद रख पढ़ाई के साथ जिस चीज ने तेरा आगे गीत बिगना ही तेरी शख्सियत की वजह से, किरदार बढ़ेगा और अपने किरदार सक्सेस खड़ी करेगी तेरी जिंदगी। अपनी जीत और अपनी हार किरदार से डिफाइन करता है इंसान। ये प्लस माइनस और ये वैल्यूज और मेजरमेंट से हार जीत नहीं होती कि 4 रुपए उन्होंने को चले गए तो 5 रुपए मेरे को आ गए, ये हार जीत नहीं होती। हार जीत होती है कि किरदार खड़ा है मैदान में या नहीं खड़ा। तो अपनी मुस्कुराहटों से अपनी दुश्मनियों को तूने हैरान करना है, अपने मिजाज से तूने अपनी शिकस्त को, कहते हैं ना वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग ग्रेसफुली, ग्रेस के साथ हारना सीख, भरम के साथ हारना सीख, मिजाज के साथ हारना सीख कि अगलों की जीत का मजे भी खराब कर दे तो करकरा कर। ये कैसे करेगा? इतना बड़ा एक छोटा सा बूटा, एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा बीज कैसे बनता है इतना बड़ा? जिगर कलेजा कैसे बढ़ता है? उस चीज के खिलाफ जाके जो नफ्स को पसंद नहीं, जिगर कलेजा कैसे बढ़ता है? वो करने के बाद जिगर बढ़ता है जो मन नहीं चाहता था, जो लोग नहीं चाहते थे। जिगर कलेजा बढ़ता है जब इंसान अपनी काटी लगाता है और अपनी नफी कर जाता है।
तू एक फलसफा है जो खुद लिखेगा अपने आप, तू एक तहरीर है जो तेरे ही हाथों से लिखी जाए, तू एक खिताब है जो खुद अपने लफ्जों को जुमलों की शक्ल देगा। कंप्लेन, शिकायतें ये कोई नहीं सुनेगा, ये करनी भी नहीं चाहिए। तो तू खुद एक फलसफा है जो खुद तहरीर करेगा। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला, रास्ते दिखा दिए हैं तुझे हम, इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूर, लीव इट और टेक इट। तू पैगाम उठाता है टेबल से या नहीं उठाता, फैसला तेरा हो, फैसला तेरा होगा कि तू फैसलों को क्या फैसला सुनाता है अपना। दुनिया के फैसले जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, तू उनको क्या फैसला सुनाना चाहता है, ये भी फैसला तेरा होगा। और आखिरी बात, ये एक दिन का काम नहीं, ये लम्हों के अंदर नहीं होता, ये लफ्जात में नहीं होता। जिंदगी एक लंबा सफर, और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जमाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को और अपने उन वबाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर।